So till now we have seen okay, what is the site of where is the site of photosynthesis. Now we will see that what is light reaction. Just now we have seen कि हम पूरे photosynthesis के process को we can divide into two kinds of reaction, that is light reaction and dark reaction. So first of all we will observe what is light reaction. Now before we understand the all the reactions of light reactions, we should know what is light harvesting complex. ठीक है, तो light harvesting complex क्या होता है? This topic is given on page number 211. You can open the page and you can underline the important things. तो देखिए what is light harvesting complex. तो हम ये समझ सकते हैं कि light harvesting complex is the arrangement, मतलब it forms the LHC light harvesting complex is formed by the arrangement of different pigments. ठीक है, it is formed by arrangement of photosynthetic pigments in chloroplast. Clear? तो light harvesting complex क्या बनाता है? It is the arrangement of photosynthetic pigments. Now LHC has two things. एक तो chlorophyll A, which is the main pigment, and it forms the reaction center. ठीक है, one thing is chlorophyll A, which forms the reaction center, and another thing is other pigments which are called accessory pigments, which help the chlorophyll molecule. ठीक है, तो and it forms the antenna. Okay, so LHC has two components, chlorophyll A reaction center and accessory pigments which are known as antenna. तो ये दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी. तो this is the antenna and chlorophyll A is the reaction center. Now what is the light reaction basically? Light reactions are the photochemical phase. Photochemical means यहाँ पे light का absorption होगा and क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, जैसे इट इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ये मार्क कर लीजिए आप, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH. ये सारा टिल द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH. ओके, दीज 4 इवेंट्स विल टेक प्लेस. नाउ तो इन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए. अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये फोटो सिस्टम के साथ वर्क करते हैं. व्हाट इज फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम में ही ये दोनों LHCs आ जाएंगे. द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोटो सिस्टम, PS1 कह सकते हैं हम जिसको, और PS2. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. अब पहले हमने PS1 कहा है, देन PS2, बट ये इनके दे आर अरेंज्ड, दे आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी. लेकिन जब एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है तब पहले PS2 वर्क करता है, देन PS1. ओके, बस 1 और 2 हमने डिस्कवरी के अकॉर्डिंग उसको नाम दिए हुए. तो इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम्स. तो इसका दोनों में अलग अलग काम होगा. जैसे इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर. ठीक है, समटाइम्स PS1 और PS2 में डिफरेंस इज बीइंग आस्क्ड. सो यू शुड नो कि इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर. मतलब इस वेवलेंथ पे, इस वेवलेंथ की लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा. सिमिलरली इसीलिए इसको P700 कहते हैं. P stands for pigment and 700 is the wavelength. While in PS2 it has absorption maxima at 680 nanometer. तो इसको ये वाली वेवलेंथ चाहिए, इसलिए इसको P680 कहते हैं. Then we see how electrons are transported. किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं. That means how the light energy is absorbed and how the electrons are transported in the full process. So this is what the electron transport. Now this electron transport will involve PS1 that is photosystem 1 and photosystem 2. ये दोनों इसमें काम में आएंगे. तो सबसे पहले PS1 वर्क नहीं करेगा, पहले PS2 से हम स्टार्ट करेंगे. तो PS2, इन PS2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A है, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सनलाइट at 680 nanometer. Okay, it will absorb the wavelength of 680 nanometer of red light. और ये absorption होने से क्या होगा? Electrons will be excited. So it will cause electrons to become excited and they jump into an orbit. बाहर निकल के जंप करके बाहर आ जाएंगे. And these electrons are picked up by electron acceptor. अब इनको कोई पिक करेगा which passes them to an electron transport
सिस्टम जिसको कि हम साइटोक्रोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। ये देखिए ये पूरा पिक्चर, ये फिगर 13.5, विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर वी विल एक्सप्लेन कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो वी हैव बिगिन विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। PS2 में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ ऑफ 680 नैनोमीटर, ठीक है। वो लाइट एब्जॉर्ब होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उनको पिक कर लिया। नाउ यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता हुआ इट विल एंटर इनटू द PS1। ये कहाँ आएगा, PS1। अब देखिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं तो ये क्या कहलाएगा, डाउनहिल। तो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। नाउ यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप, यहाँ पे यूज नहीं होंगे, बट दे आर ट्रांसपोर्टेड टू PS1। ये PS1 की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे एंड साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड। यहाँ पे भी फिर इनको एक्साइट कर दिया जाएगा एंड दे विल व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700, यहाँ पे ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ से एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू अनदर मॉलिक्यूल जिसको हम कह रहे हैं NADP, ठीक है। NADP प्लस ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये लेगा इसको। द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो जाएंगे तो दिस विल बी NADP प्लस विल बी रिड्यूस्ड टू NADPH एंड H प्लस, ठीक है। तो यू कैन सी, यू कैन मार्क दिस लाइन, दिस होल स्कीम, ये पूरी जो होल स्कीम है, दिस होल स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, दिस होल स्कीम ऑफ transfer of electrons starting from PS2 uphill to the acceptor, down the electrons transport chain to PS1, then excitation of electrons, ये सारा sequence में हो रहा है, transfer to another electron acceptor and finally downhill to NADP plus reducing it to NADPH plus hydrogen ion। ये पूरा जो sequential है। अब यहाँ पे आप अगर इसकी शेप बना के देखो आप, तो ये Z की शेप बन रही है, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड Z स्कीम, ओके। तो ये जिस सीक्वेंस में, जिस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, दिस इज मेकिंग द शेप ऑफ Z, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड Z स्कीम ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट थिंग। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है। देन वी सी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट इवेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, सॉरी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का जैसे हम जानते हैं वाटर इज H2O। जब ये स्प्लिट होगा तो इट विल डिवाइड इनटू हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। तो द वाटर विल बी स्प्लिटेड इनटू 3 कंपोनेंट्स, ये 3 चीज़ में डिवाइड हो जाएगा। तो PS2 को अगर हम पूछें कि PS2 को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हो रहा है, तो द आंसर विल बी फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वाटर स्प्लिट हो रहा है, इसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो रहे हैं। Okay, the electrons that were moved from PS2 must be replaced. This is achieved by the electrons available due to splitting of water. तो splitting of water से हमें electrons continuously मिल रहे हैं and it is split into hydrogen, oxygen and electrons. इससे क्या होता है, ऑक्सीजन भी हमें मिलता जा रहा है and the electrons needed to be replaced, those removed by PS1 are provided by PS2. यहाँ पे ये आप देख सकते हो 2H2O is broken into proton, oxygen and electrons. So we can say कि water splitting complex is associated with PS2, ठीक है। The next thing now, cyclic and non-cyclic photophosphorylation. What does it mean? Cyclic हम किसको कहते हैं, जो चीज़ कंटिन्यूशन में चलती रहे, ठीक है। एंड नॉन साइक्लिक मीन्स एक बार शुरू होके एक बार खत्म हो जाएगी। नाउ हमने जो अभी देखा, जैसे Z स्कीम वाला देखा, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन। तो पहले बताते हैं हम कि व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, है ना। आप पेज नंबर 212 पे आ जाइए। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज व्हाट
phosphorylation. So addition of phosphate is the phosphorylation. Now in the presence of light, photophosphorylation क्या हो जाएगा? In the presence of light means addition of phosphate in the presence of light is what? Photophosphorylation. Now the next thing, दो तरह के हो गए photophosphorylation, cyclic and non-cyclic. तो living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy. जितने भी organisms हैं, हम सब में जो energy store होती है वो किस form में होती है? ATP, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ATP के फॉर्म में बॉन्ड एनर्जी स्टोर होती है. तो स्पेशल सब्सटेंसेज लाइक ATP कैरी दिस एनर्जी एंड इन देयर केमिकल बॉन्ड्स. Now we'll see what is the difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So we can see that the process of formation of high energy molecules like ATP in the presence of light, ठीक है, ये क्या है? photophosphorylation है. Now if when the, यहाँ पे देखिए, when the दोनों systems जब एक साथ continuously work करते हैं तो हम उसको कहेंगे नॉन साइक्लिक. ठीक है, यहाँ से मार्क कर लीजिए. व्हेन द टू फोटो सिस्टम्स वर्क इन अ सीरीज, फर्स्ट PS2 एंड देन PS1, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. एक बार PS2 देन PS1 और स्टॉप हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन साइक्लिक. ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स PS1 में ही घूमते रहें तो वो कहलाएगा, if only PS1 is functional and the electron is circulated with the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons, then it will be called as cyclic photophosphorylation. तो ये दो चीज़ें हो गई, है ना. PS1, अगर सिर्फ PS1 functional है तो electrons will keep on circulating in it, that will be called cyclic photophosphorylation, and if both the photosystems are functional तो वो कहलाएगा non-cyclic photophosphorylation. पेज नंबर 213 पे we are studying. So this diagram is showing cyclic photophosphorylation. That means electrons are revolving in the electron transport system जो कि साइटोक्रोम है, और PS1, ये इनमें पूरा रोटेशन चल रहा है. Now some other differences are also there कि both ATP and NADPH are synthesized by this kind of electron flow. मीन्स जो ये नॉन साइक्लिक है इसमें ATP और NADPH सिंथेसाइज होंगे, जबकि साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा, NADPH नहीं बनेगा. क्लियर? नाउ लेट अस सी. जैसे हमने देखा व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल तब साइक्लिक चलेगा. अ पॉसिबल लोकेशन, अब ये कहाँ पे हो रहा है ये सारा काम? तो इट इज हैपनिंग इन स्ट्रोमा लैमेली. Okay, cyclic photophosphorylation is taking place in stroma lamellae, while the membrane or the lamella of the grana have both PS1 and PS2. तो non cyclic कहाँ पे होगा? membrane में या lamella of grana में. The excited electrons does not pass to NADP plus but is cycled back to PS1 complex. तो ये non cyclic है. The cyclic flow hence results only in the synthesis of ATP. जैसे मैंने बताया अभी, साइक्लिक फ्लो में सिर्फ ATP का सिंथेसिस होगा, NADPH का नहीं होगा. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelengths beyond 680 nanometer are available. Now we'll understand what is chemiosmotic hypothesis. तो chemiosmotic hypothesis समझते हैं हम. That means किस तरह से एक हाइपोथेसिस बनाया गया, मतलब एक इमेजिनेशन जैसा है कि ये कैसे सारा वर्क कैसे होता होगा. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. जैसे कि रेस्पिरेशन में होता है, फोटोसिंथेसिस में भी ATP सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. तो सबसे पहले हमें क्या समझना ज़रूरी है, मतलब व्हाट इज नेसेसरी फॉर दिस होल प्रोसेस इज प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? ग्रेडियंट मीन्स कि एक तरफ कंसंट्रेशन हाई हो और एक तरफ लो हो. तो यू कैन सी इन द पिक्चर, आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं. सी दिस फिगर. दिस इज व्हाट, ये हमारा ल्यूमेन है
ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रोमा। ये हम ग्रेना की बात कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द ग्रेना एंड दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द ग्रेना एंड दिस इज द आउटर, जैसे कि स्ट्रोमा है। नाउ यहाँ पे आप देखिए H+H+ जो शो हो रहा है, दिस इज व्हाट प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इन द ल्यूमेन इट इज हाई एंड आउटसाइड द ल्यूमेन दैट इज इन द स्ट्रोमा इट इज लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हो गया। तो व्हाट इज नेसेसरी फॉर दिस कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होना ज़रूरी है ना। देन यू कैन सी दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये पूरा, साइटोक्रोम, और जहाँ से कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। यू कैन सी दैट हाउ दिस प्रोसेस इज वर्किंग। तो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब मूव होंगे तो यहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर। नाउ वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या क्या स्टेप्स होंगे वो हम देख लेते हैं। सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, सबसे पहली बात वाटर की स्प्लिटिंग होती जाएगी तो क्या होगा, विच इज ऑकरिंग इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ the protons or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen। तो ये lumen में accumulate होंगे and it will increase the concentration of protons inside the lumen। तो आप देख सकते हो ये lumen बहुत सारे protons जो हैं ये इकट्ठे हो गए, तो it is preparing, ये क्या हमें दे रहा है कि यहाँ पे concentration ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। Now as electrons move through the photosystem, ये photosystem था, यहाँ से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे एंड दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड आउटसाइड द मेम्ब्रेन, इट ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, पर कहाँ चले जाते हैं ये हाइड्रोजन कैरियर के पास। तो हाइड्रोजन कैरियर पे जाने की वजह से दिस मॉलिक्यूल रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा और उसको कहाँ भेज देता है, अंदर भेज देता है। तो क्या होगा, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज हो जाता है। अब एक और चीज़ जो है NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये कहाँ लोकेटेड है, स्ट्रोमा के साइड में लोकेटेड है। तो अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH+ हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या करेंगे, इसको ATP के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे एंड दीज प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो कंटिन्यूसली लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज द वे कि किस तरह से ATP सिंथेसिस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। The main motive of this process was ATP synthesis. So children, the remaining topics of this chapter we will continue in the next video. Till then, you take care. Goodbye.